Hello, students. So far, we have seen digestive enzymes and its action produced by salivary gland and released in mouth. Then we have seen digestive enzymes produced by a special type of cells present in the stomach and released in the stomach only. Okay. After that, we have seen digestive enzymes produced by pancreas and released into duodenum, part of small intestine. Now we will see small intestine itself. What are the secretions that are being produced by the small intestine and it aids in the digestion? Small intestine. As you know, small intestine is the organ in the gastrointestinal tract where most of the absorption of nutrients from food takes place. Okay, and this small intestine lies between stomach and large intestine. Okay, so this is large intestine, this is small intestine. Small intestine is between stomach and large intestine. Okay, and this small intestine basically it receives from pancreas as a pancreatic juice through the pancreatic duct, and it also receives bile via common bile duct from the gallbladder and cystic duct from the liver to gallbladder. Cystic duct from liver to gallbladder and then gallbladder to small intestine common bile duct. इससे ये पहुंच रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरफ से, लेफ्ट साइड में पैंक्रियाज और राइट साइड में लीवर. लीवर एंड देन पैंक्रियाज. आप देखेंगे ये आपका लेफ्ट साइड है. ओके, बट दिस इज द राइट साइड ऑफ योर बॉडी. इफ यू टर्न and this will become right side. So right side is liver. तो लीवर से भी पहुंच रहा है इसके सिक्रीशंस. भले गॉल ब्लैडर से आ रहा है लेकिन गॉल ब्लैडर में लीवर से आ रहा है. फिर पैंक्रियाज से भी पहुंच रहा है इसका सिक्रीशंस ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम खुद भी प्रोड्यूस कर रहा है अपना एंजाइम. ठीक है, तो तीन सोर्सेज हैं इंटेस्टाइन में फॉर ऑल दोज सब्सटेंसेस विच एड इन द डाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल पैंक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन हम लोग पढ़ चुके हैं, लीवर भी देख चुके हैं. ओके, लीवर बहुत सारा काम करता है लेकिन डाइजेशन में उसका रोल ये है कि वो बाइल सॉल्ट्स और बाइल एसिड सिक्रीट करते हैं जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन में, लिपिड के एब्जॉर्प्शन में सहायक हैं, बिकॉज दे इमल्सिफाई द फैट प्रेजेंट इन आवर फूड. तो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है. उससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लीजिए. अभी बता ही रहे हैं आपको. ये 18 फीट या 6 फीट लंबा हो सकता है, या 6 मीटर तक हो सकता है. सबसे छोटा पार्ट इसका जो है ड्यूडेनम कहलाता है.
Then comes jejunum. Then comes ileum. Ileum joins with the large intestine. So these are the three different distinct regions of the small intestine, where the duodenum is the shortest. And digestion occurs in the duodenum. जेजुनम में बेसिकली आपका एब्जॉर्प्शन होता है, एंड जेजुनम इज characterized by the presence of enterocytes. These are the special cells present in the small intestine, jejunum part. Basically, these are simple columnar epithelial cells which line the inner surface of the small and large intestine. तो इलियम में भी है एंटेरोसाइट्स, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एंटेरोसाइट्स आर प्रेजेंट, और ये एंटेरोसाइट्स जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। इनको इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल। इनका करेक्टरिस्टिक है, इनके एपाइकल पोर्शन में बहुत सारे विलाई होते हैं, विलाई साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, प्रोट्रूजन्स है, फिंगर लाइक प्रोट्रूजन्स है, सो दैट इट इंक्रीजेस द surface area. This is the lumen side. So surface area increase कर लिया और इससे absorption करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इलियम बहुत इम्पोर्टेंट है एब्जॉर्प्शन में, इलियम पार्ट भी। ओके, क्योंकि इलियम में आपको बताए हैं विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, और विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स के साथ रहता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है। बाइल सॉल्ट्स का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है इलियम में, और भी सारे प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स of digestion that were not absorbed by the jejunum. ओके, इसमें duodenum is quite long. Duodenum is a short structure which is roughly around 20 centimeter only in length, and its shape is C-shaped. It is C-shaped. Jejunum is mid section of the small intestine, and it connects duodenum to the ileum, and it is about 2.5 meter long. 2.5 meter long means 2500 centimeter in length. Okay. Ileum, the final section, is also very long. It can be up to 3 meter in length.
So now we will come to the secretions part. What small intestine secretes basically? There are two types of substances which small intestine secretes. Number one, hormones. And peptides. Basically, there is a debate between the guys, investigators, that whether these peptides can be called as hormones or not. फिर ये हो गए हॉर्मोन्स एंड पेप्टाइड्स. दूसरे तरह के सब्सटेंस जो कि डाइजेशन में डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं वो हैं उनके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स. हार्मोन और पेप्टाइड्स को हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे इन द रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. पहले डाइजेस्टिव एंजाइम देखते हैं. नंबर वन, बहुत तरह के पेप्टिडेजेज हैं. ओके, पेप्टिडेजेज. पेप्टिडेजेज के भी टाइप्स हैं. आपके हो गया एक्सोपेप्टिडेजेस, एंड एंडो. एक्सोपेप्टिडेजेज में भी कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड अमीनो पेप्टिडेज. Carboxypeptidase and aminopeptidase, these are terminal peptidases, and these are basically they convert carboxypeptidase, exopeptidases, all these type of peptidases actually cleaves the amino acids from the terminal end. So these peptidases cleaves the amino acid from terminal end of the peptide. कार्बोक्सीपेप्टिडेज कार्बोक्सी टर्मिनल एंड से, अमीनो पेप्टिडेज अमीनो टर्मिनल एंड से. ओके, एंड देन एंडोपेप्टिडेजेस. ठीक है, एंडोपेप्टिडेजेस, these are proteolytic peptidases that breaks peptide bonds of non-terminal amino acids. It breaks peptide bonds at non-terminal ends of, not ये सही नहीं रहेगा, breaks peptide bonds of non-terminal amino acids. ठीक, हो गया पेप्टिडेज. नंबर सेकेंड, there are various types of disaccharidases.
सैकराइडेजेस, जिसमें से 3 जो मुख्य हैं आपके नंबर 1 माल्टेज, नंबर 2 सुक्रेज, नंबर 3 लैक्टेज। Maltase breaks down maltose, which is the disaccharide of glucose unit. Sucrase hydrolyzes sucrose, which is the disaccharide unit of glucose and fructose. Lactase hydrolyzes lactose, which is the disaccharide unit of glucose and galactose. And there are other disaccharidases also. Produced by the intestinal cells. Okay. तो आप जान रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो गया था बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज produced by the salivary gland, and it is present in salivary juice, saliva, and it comes in mouth. And there when you chew it, it mixes with the carbohydrate, and carbohydrate digestion starts in the mouth. But in the stomach, carbohydrate digestion doesn't take place. But in the small intestine, carbohydrate digestion takes place by 2 types of enzymes. First type is the enzymes produced by the pancreas but added to the duodenum. Produced by pancreas, but it is coming in the duodenum by the duct. Second, the enzymes produced in the small intestine itself. ओके तो पैंक्रियाज से जो एंजाइम आ रहे हैं वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। वो एंजाइम्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो जो अभी हम लोग डिस्कस किए पेप्टिडेजेस एंड दिस डाइसैकराइड पेप्टिडेजेस, सैकराइडेजेस also. These are produced in the small intestine and they will digest the food or partially digested food there. Okay. So basically these 2 categories of enzymes are produced by the small intestine. Now we will come to, so here your enzymes produced by the gastrointestinal tract is over, complete for your syllabus point of view. Now we will see the regulation of enzymes, digestive enzymes secreted in the gastrointestinal tract. How these enzymes are regulated, when it will be produced. So the regulation part is also important, because if the food is entering in the gastrointestinal tract, then suitable enzymes should be produced in adequate quantities to digest these substances. Otherwise, indigestion will occur. Okay. साथ ही साथ वह खाना कितनी देर तक पेट में रहना चाहिए उस रीजन में, ठीक है, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में कितनी देर रहना चाहिए, इलियम में, जेजुनम में, स्टमक में कितनी देर रहना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। ओके। और साथ ही साथ खाना वहाँ से निकल भी जाना चाहिए, फूड, डाइजेस्टेड फूड, एंट्री भी और उसका पैसेज भी और उसका ठहराव भी कितनी देर होना चाहिए।
अगर खाना खाया तुरंत निकल गया तो कैसे डाइजेस्ट होगा? और खाना खाए और पेट में ही ठहर गया, वो आगे जा ही नहीं रहा है, तो दैट विल ऑल्सो काउज ए सीरियस प्रॉब्लम टू यू। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाएगी, ब्लॉकेज हो गया इंटेस्टाइन में और सर्जरी करनी पड़ जाती है वैसे केस में। ठीक है, तो नाउ वी विल सी रेगुलेशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। Regulation of secretion of digestive enzymes in gastrointestinal tract. This we will see now how it is happening. तो पहले आप जानिए कि we have two type of responses to food. First one is the neuronal response, and the second one is hormonal response. अब आप देखेंगे हार्मोनल रिस्पॉन्स में, ठीक है, न्यूरल रिस्पॉन्स जो है वो हार्मोनल रिस्पॉन्स को काउज करता है, हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है हमारे, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स, गैस्ट्रीन, ओके, सिक्रीटीन भी बताए हैं, एक और है CKK बोलते हैं, वो सब अभी नहीं बताएं, आपको बताएंगे अभी। ठीक है, गैस्ट्रीन, सिक्रीटीन, ये दो हम बताए हैं। एक सोमेटोस्टैटिन भी होता है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलते हैं। होता क्या है, आप कोई खाना देखें सबसे पहले, उसके बाद योर न्यूरोनल रेस्पॉन्स विल बिकम एक्टिव। और अभी जो नाम बताए, ये हार्मोन, सिक्रीटीन, ये सब आपका गैस्ट्रीन, ठीक है, ये सब न्यूरोनल रेस्पॉन्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। क्योंकि आपका न्यूरोनल रेस्पॉन्स जो है, एक होता है ENS सिस्टम, अगर आपको पता हो, सुने हो नाम, कभी नहीं सुने होगे नाम, देखिए मैं बताता हूँ। ENS सिस्टम कहते हैं न्यूरोनल रेस्पॉन्स में ही, चलिए ENS, इसको कहते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ पार्ट ऑफ बेसिकली आपका पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, ऑटोनॉमिक एंड नॉन ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक is divided into sympathetic and parasympathetic. Parasympathetic का भी डिवीजन है this one, enteric nervous system, and this enteric nervous system is responsible for this neuronal response. If you eat food, then because of the action of this, the hormones will be released,
कैसे? क्योंकि खाना खाएंगे आप तो स्टोमक भी डायलेट होगा, फैलेगा डिस, ठीक है। और वेगस नर्व जो है आपका 10th नर्व, क्रेनियल नर्व, वो इंटरवेंशंस हैं इसके वेगस नर्व के स्टमक में, ठीक है। और खाना आप देखे, विजुअल साइट सूंघे, स्मेल से एसिटाइल कोलिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन, अभी इसमें उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर आपको बता देना है। एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ ईएनएस के द्वारा, एंड ईएनएस इज देयर इन द स्टमक, and this acetylcholine will activate G cells, and it also activates parietal cells. आपको बताए हुए हैं जी सेल्स। जी सेल्स कहाँ पर है? स्टमक के पाइलोरस रीजन में। और जी सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? जी सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं बच्चों? अच्छा नहीं है, ये लाइव क्लास नहीं है, ओके। जी सेल्स गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, गैस्ट्रिन, ओके। और गैस्ट्रिन फिर एक्ट कर रहा है पेराइटल सेल पर। पेराइटल सेल एसिटाइल कोलिन से भी एक्टिवेट हो गया, और गैस्ट्रिन के एक्शन से ये प्रोड्यूस करने लगेगा पेराइटल सेल्स HCl, ओके। पेराइटल सेल्स स्टमक के डायलेशन से भी स्टिमुलेट होता है। तो सबका कंबाइंड एक्शन है, स्टमक का डायलेशन and the intervention of vagus nerve in the stomach, that is releasing acetylcholine in the response of the sight of food, smell of food, okay। तो आपका एसिटाइल कोलिन भी उसको एक्टिवेट कर रहा है आपको, साथ ही साथ स्टमक जो फैल रहा है उससे भी एक्टिवेट हो रहा है आपका जी सेल्स। और जी सेल फिर गैस्ट्रिन सिक्रीट कर रहा है, गैस्ट्रिन से भी पेराइटल सेल पर इफेक्ट हो रहा है, और फाइनली HCl सिक्रीट हो रहा है पेराइटल सेल। तो पेराइटल सेल के ऊपर 3 दबाव पड़ रहे हैं। एसिटाइल कोलिन से पेराइटल सेल में एक्टिवेट हो रहे हैं, उसके बाद आपका जी सेल्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं, और साथ ही साथ स्टोमक का डायलेशन हो रहा है, तो जी सेल गैस्ट्रिन सिक्रीट कर रहा है, गैस्ट्रिन इज एक्टिंग ऑन द पेराइटल सेल अगेन, ठीक है, लूप में, और पेराइटल सेल देन सिक्रीट्स HCl। तो देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज लाइक दिस, सॉरी, अब क्या होगा? आपने खाना देखा, और in the reaction to the smell, sight, or even the thought of food, the first hormonal response is that of salivation, ठीक है। सबसे पहले फिर सलाइवेशन हुआ, थाली आ गया, आगे सलाइवेशन शुरू, and the salivary glands secrete more saliva in response to this stimulus which is present in the food, ओके। अच्छा स्मेल होगा फूड का, और ज़्यादा सलाइवेशन होगा, और ज़्यादा खाने की ललक होगी, ओके। और एज से ये घटते जाता है, बच्चों में ये ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगा वो कम होते जाता है, ठीक है। साथ ही साथ स्टमक भी प्रिपेयर हो रहा है टू सिक्रीट द HCl नाउ। क्यों? क्योंकि न्यूरोनल रिस्पॉन्स हुआ। आपने क्या देखा? फूड को देखा, सोचा, देखा, स्मेल किया,
नर्व्स आपके एक्साइट हुए, स्टिमुलस गया ब्रेन को, ब्रेन से वेगस नर्व आपके स्टमक को प्रिपेयर कर दिया, बी प्रिपेयर्ड फॉर द डाइजेशन बिकॉज फूड इज कमिंग नाउ. So start secreting HCl. Don't secrete now. Keep the HCl in your cell itself, but produce the HCl. Keep that HCl in the vesicles. When the food will come, then you secrete that vesicle. Okay. So because of neuronal response, salivation has started, and stomach has begun to produce hydrochloric acid to digest the food, but it is not releasing into the stomach. HCl is kept inside the cell. ओके. पेराइटल सेल से निकलते हैं HCl, पेराइटल सेल में अभी बंद है. अब क्या हुआ, सलाइवेशन के बाद आप फटाफट खाओगे इंजेशन. इंजेशन ऑफ फूड. इंजेशन में यहाँ देख लीजिए न्यूरोनल रिस्पॉन्स ही है, सलाइवेशन हो ही गया, इंजेक्शन कर रहे हैं तो इससे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी जूसेज आर मिक्सिंग इन द फूड एंड यू आर चूइंग इट. दैट्स ऑल. यहाँ पर कोई हार्मोन का काम नहीं है, डायरेक्ट फूड जा रहा है और उसको देख करके उसका स्वाद से 3 फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पर सलाइवेशन में, स्मेल और साइट, खाना देखे आप, थॉट, सोचे वो, और आपका एक और है टेस्ट. यस, टेस्ट, अच्छा टेस्ट वाला खाना. एक बार खा लिया और अच्छा लग रहा है. आप देखे हो, मान लो कि पिज़्ज़ा अच्छा लगता है तो पहली बार तो खाए नहीं, कई बार खाए हैं, तो उसके स्मेल से सलाइवेशन हो गया और आपको पता है कि इसका टेस्ट कैसा है, पहली बार नहीं खा रहे हैं तो टेस्ट को आप थॉट में एज्यूम भी कर लिए कि बहुत टेस्टी है ये. तो यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर लिया, सलाइवा को रिलीज करवा दिया सलाइवरी ग्लैंड से. अब आपने इंजेस्ट किया फूड, चबाया, इंजेस्ट करने के बाद अब ये जाएगा फॉर द डाइजेशन. इसोफेगस में कुछ नहीं हुआ, आगे चला स्टमक. स्टमक में पहुंचा, स्टमक में एज यू नो दैट स्टमक सिक्रीट्स हार्मोन्स. कौन कौन सा हार्मोन है बताए थे आपको. स्टमक में पहुंचा तो 3 काम हुए. पहले, और ये पैरेलली भी चल रहा है न्यूरोनल रिस्पॉन्स की वजह से, आपका एसिटाइल कोलिन जो है गैस्ट्री जी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया है और गैस्ट्रिन सिंथेसाइज हो रहा है, बट गैस्ट्रिन अभी रिलीज नहीं हुआ है. सेल के अंदर सिंथेसाइज होना शुरू हो गया, सेल के बाहर नहीं आया. सेल के बाहर आएगा तब स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक के चैम्बर में. तो स्टमक जो है, आप भोजन लिए, उससे क्या हुआ, इट इज डायलेटिंग. तो एक मैकेनिकल प्रेशर जनरेट हुआ. ओके. एंड द प्रोटीन्स present in the food that also stimulates. So these 2 factors stimulates the stomach, parietal cells, G cells. These 2 factors stimulates G cells of stomach to release
gastrin. Stimulate G cells of the stomach to release gastrin. This is hormone. And the gastrin will work on parietal cell. It will stimulate parietal cells present in the stomach to release. अब रिलीज करेगा, सिंथेसाइज कर लिया एसिटाइल कोएंजाइम बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन के रेस्पॉन्स में इसने सिक्रीट कर लिया, सेल के अंदर भर लिया HCl. कौन? पेराइटल सेल्स. अब खाना पेट में पहुंचा, खाना से पेट फैला, पेट के फैलने से पाइलोरस रीजन में G सेल्स हैं, G सेल्स विल रिलीज गैस्ट्रिन. Now gastrin will act on parietal cells to release, जो पहले सिंथेसाइज हो गया था, to release HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Okay students, now this hydrochloric acid, as you know, it will denature the food and it will aid in the digestion. What will happen then next? आगे चलिए. ठीक है, एक हार्मोन जो कि स्टमक प्रोड्यूस करता है वो हो गया. यही एक हार्मोन है, आगे अगर और खोज होगी तो पता लगेगा. गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन जो हमें पता है स्टमक सिक्रीट करता है. ठीक है, G सेल्स ऑफ द स्टमक. अब खाना पहुंचा स्टमक से होते हुए कहाँ? ड्यूडेनम में. ठीक है, खाना पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में. ड्यूडेनम. एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे आगे पहुंच रहा है, खाना को कोई ढकेल रहा है पीछे से. कोई खाना, कोई हवा नहीं है कि खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाएगा. ओके, पैसिवली. तो ये एक प्रोसेस है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड पार्टिकल है, तो इसको ढकेलने के लिए कोई एक्टिव प्रोसेस चाहिए, प्रेशर चाहिए पीछे से, फोर्स चाहिए. ठीक है, दैट फोर्स इज गिवन बाय द नर्वस सिस्टम, ENS. Gastrointestinal tract is intervened by many nerves which are coming from enteric nervous system, and this gives peristaltic movement. This causes peristaltic movement in gastrointestinal tract, because gastrointestinal tract is lined by smooth muscles, involuntary smooth muscles. Smooth muscles are involuntary है, आपकी इच्छा पर नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, वो नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स में, वो नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन पर वो रिस्पॉन्स करेंगे. तो ये साइड में चल रहा है. अब ड्यूडेनम में पहुंचा खाना. ड्यूडेनम में क्या होगा? एंजाइम्स तो आप बता दिए, ड्यूडेनम में पेंक्रियाज से आ रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं. एंजाइम में नहीं जाएंगे. अब आते हैं, मतलब इन एंजाइम्स के रेगुलेशन में हम चल रहे हैं अभी. ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम आपका बेसिकली चार तरह के नहीं, स्टमक हो ही गया. पेंक्रियाज से कोई हार्मोन निकलता है? नहीं निकलता है. पेंक्रियाज से कोई हार्मोन, हाँ हार्मोन है, लेकिन वो इंसुलिन ग्लूकागोन है, वो डाइजेशन में उसका रोल नहीं है, उसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रोल है. पेंक्रियाज से जो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हार्मोन निकला वो, उसका रोल डाइजेशन में है. देखिए कैसे. आपके 2-3 एंजाइम हैं
बेसिकली मेन ड्यूडेनम से सिक्रीट होते हैं। नंबर 1, ड्यूडेनम विल सिक्रीट सिक्रिटीन। सिक्रिटीन, ठीक है। और ये सिक्रीट होते हैं बाय एस सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है। सिक्रिटीन का मेन काम है कि आपका बेसिकली ये आपके पैंक्रियाज के सेल्स को एक्टिवेट करना, ठीक है। इनका काम है, इट स्टिमुलेट्स आपके, इट स्टिमुलेट्स सिक्रिटीन स्टिमुलेट्स secretion by पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से सिक्रीशन ऐड हो, जरूरी है, ऐड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डाइजेशन नहीं होगा। वो इंश्योर करवाना कि पैंक्रियाज से ऐड हो ही हो, वो काम है सिक्रिटीन का। और सिक्रिटीन स्मॉल इंटेस्टाइन के ही एस सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, नाम ही है सिक्रिटीन। तो पैंक्रियाज, सिक्रीशन बाय पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में भी 2 तरह के सेल्स थे, आपको बताए थे, डक्टल सेल्स एंड एसिनर सेल्स। एसिनर सेल्स बेसिकली पैंक्रियाज के हॉर्मोन्स को बना रहे हैं इन द जाइमोजन फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। और डक्टल सेल्स जो हैं ये बाइकार्बोनेट, समझे, क्योंकि पीछे से बाइकार्बोनेट, इसको मिटा दो, यहाँ पर स्पेस नहीं है, बाइकार्बोनेट, ये डक्टल सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो and as well as production of secretin also inhibits गैस्ट्रीन का सिक्रीशन, ठीक है। क्योंकि खाना अब पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, तो अब स्टमक में HCl क्यों सिक्रीट हो, खाना पास कर गया स्टमक में, अब HCl का काम नहीं है, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगा, दैट इज अनवांटेड। फिर HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, पहले तो प्रोटीन था, खाना था, प्रोटीन था, HCl रिएक्ट कर रहा था, लेकिन स्टमक खाली हुआ, खाना आगे पहुंचा, तो अब पीछे का सिक्रीशन बंद हो जाना चाहिए। तो सिक्रिटीन जो है गैस्ट्रीन के सिक्रीशन को बंद कर देता है। जब ड्यूडेनम सिक्रिटीन रिलीज किया, तो ये सब हार्मोन है, ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और ब्लड भाया ब्लड और फिर उस ऑर्गन तक वो पहुंच रहे हैं, ओके। और सिक्रिटीन क्यों रिलीज होगा, इसका रेस्पॉन्स क्या है? सिक्रिटीन का रेस्पॉन्स है कि प्रोटीन एंड फैट रिच एसिडिक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, या काइम कहिए, डायरेक्ट एक वर्ड है इसके लिए, काइम। काइम क्या है? प्रोटीन और फैट रिच, ओके। फैट का डाइजेशन सबसे लंबा प्रोसीजर है, सब बहुत टाइम लगता है फैट के डाइजेशन में, इसीलिए फैट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में भी हो रहा है बायलिंगुअल लाइपेज,
स्टमक में भी हो रहा है बाय गैस्ट्रिक लाइपेज, फिर इंटेस्टाइन में हो रहा है बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज। ओके, तो once this chyme which is rich in fat and protein, and it is acidic too because in stomach HCl is mixed with the food, and that food is called as chyme. That food, when this chyme enters the duodenum, then it gives the stimulus to the S cell of the duodenum to secrete secretin, and then after the secretion of secretin, it inhibits gastrin, and it stimulates the secretion of pancreas, secretion by pancreas, क्योंकि अब पैंक्रियाटिक जूस का काम है। काइम पहुंच गया, अब पैंक्रियाज से इसको एंजाइम्स और अदर सब्सटेंसेस मिलने चाहिए। तो चूंकि ये हाईली एसिडिक है, ओके, और पैंक्रियाज के एंजाइम्स जो हैं वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट में दे विल वर्क, सो बाइकार्बोनेट्स आर रिलीज्ड बाय द डक्टल सेल्स। ठीक है, बाइकार्बोनेट विल देन न्यूट्रलाइज दिस एसिडिक काइम। तो बाइकार्बोनेट को रिलीज कराने के लिए ये डक्टल सेल्स रिलीज करते हैं, सिक्रिटीन जो है बाइकार्बोनेट को रिलीज कराता है। साथ ही साथ सिक्रिटीन एसिनर सेल्स पर भी एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है टू रिलीज दोज पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इन द जाइमोजेन फॉर्म। अब सिक्रिटीन रिलीज करवा दिया, बाइकार्बोनेट मिक्स हो गया काइम में। नाउ दिस काइम, एसिडिक काइम प्लस बाइकार्बोनेट, H2, no, that is the carbonic acid. Bicarbonate is this one. इसका फॉर्मूला होगा HCO3-। ठीक है, ऐसे है, कार्बन है, ऑक्सीजन और आपका OH माइनस HCO3-, ये बाइकार्बोनेट है। ठीक है, कार्बोनेट रहता है आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो OH यहाँ हो जाता है। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट जो है HCO3 विल रिएक्ट विथ HCl और ये न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड इट विल प्रोड्यूस सम सॉल्ट, और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सॉल्ट फिर बाद में एब्जॉर्ब हो जाएगा इन द इलियम, और इवन इन द जेजुनम ऑल्सो इट विल बी एब्जॉर्ब्ड। एसिडिक आफ्टर दैट, now this acidic chyme is mixed with bicarbonate, and the bicarbonate it has neutralized the food, and this is also mixed with some zymogens जो कि एसिनर सेल से आए। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो समझ रहे हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। सिक्रिटीन के बाद देन कम्स द एक्शन ऑफ कोलसिस्टिकाइनिन। कोलसिस्टोकाइनिन, ध्यान रखें ये चल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में,
एसिडिक काइम एंड बाइकार्बोनेट। सिक्रेटिन रिलीज हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन विल ऑल्सो रिलीजेस कोलसिस्टोकाइनिन। In short, it is called as CKK. And these are the peptides बेसिकली ये एक पेप्टाइड है। दिस इज नॉट द एंजाइम, दिस इज पेप्टाइड, स्मॉल प्रोटीन, नॉट द एंजाइम। कोलसिस्टोकाइनिन is a unique peptide that is released by the duodenal eye cells. एस सेल से सिक्रेटिन, आई सेल से ये। और इसके क्यों ये सिक्रीट होगा? इन रेस्पॉन्स टू द काइम। ठीक है, काइम के रेस्पॉन्स में सिक्रेटिन भी रिलीज हुआ और कोलसिस्टोकाइनिन भी हुआ। सिक्रेटिन आपका हार्मोन है, दिस ऑल्सो इज पेप्टाइड एंड दिस ऑल्सो इज हार्मोन। कोलसिस्टोकाइनिन स्मॉल पेप्टाइड। ठीक है, जब पेप्टाइड लिखेंगे तो समझना ये हार्मोन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल पेप्टाइड। जैसे सिक्रेटिन भी आपका पेप्टाइड है, गैस्ट्रिन ऑल्सो इज पेप्टाइड। तो काइम के रेस्पॉन्स में ये सिक्रीट होगा और दिस काइम इज हाई इन फैट एंड प्रोटीन। काइम हाई इन फैट एंड प्रोटीन विल रिलीज कोलसिस्टोकाइनिन। अब कोई आलू ही खा रहा है, सिर्फ प्रोटीन ज़्यादा नहीं ले रहा है, आलू खा रहा है, स्टार्च है, उसके केस में कोलसिस्टोकाइनिन रिलीज नहीं होगा उस काइम के रेस्पॉन्स में। ओके, काइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सॉरी, काइम बोल रहे हैं, कोलसिस्टोकाइनिन का आई सेल से रिलीज हुआ। इम्पोर्टेंट रोल है इसका कि ये आपका एसिनर सेल्स पर वर्क करता है, वर्क्स ऑन एसिनर सेल्स टू रिलीज। एसिनर सेल्स पर सिक्रेटिन भी वर्क कर रहा है टू रिलीज द जाइमोजन एंड दिस ऑल्सो वर्क्स टू रिलीज आपका टू रिलीज देयर कंटेंट। ठीक है, एक काम ये हो गया। दूसरा काम है इसका कि इट ऑल्सो इंक्रीजेस गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। गॉल ब्लैडर एक पिचकारी जैसा है, मतलब बल्ब है, उसको पिचकाएंगे तो उसके अंदर का कंटेंट कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से बाइल will be squeezed into the cystic duct, common bile duct, and eventually it will come in the duodenum। ठीक है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन से आपका बाइल जो है स्क्वीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बाइल जो है अब देखिए, कोलसिस्टोकाइनिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गॉल ब्लैडर को भी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एसिनर सेल्स को भी ये
स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज इट्स कंटेंट। एसिनर सेल्स हैं पैंक्रियाज में, ओके, और एसिनर सेल्स विल रिलीज पैंक्रिएटिक एंजाइम्स। बहुत सारे पैंक्रिएटिक एंजाइम हैं, पढ़ाए हैं आपको इन इनएक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ओके, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेजेज, पैंक्रिएटिक लाइपेजेज, ईस्टरेजेज, ओके, फॉस्फोलाइपेजेज, ठीक है, पैंक्रिएटिक अमाइलेज, न्यूक्लिएजेज। तो इस तरह से सारे एंजाइम्स जो हैं पैंक्रियाज रिलीज कर देंगे बाय द एक्शन ऑफ कोलसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन हॉर्मोन्स। और पैंक्रियाज जब रिलीज कर दिया, वो पैंक्रिएटिक डक्ट से आगे चल के मुंह पर कॉमन बाइल डक्ट में ज्वाइन हो जाता है, फिर ड्यूडेनम में पैंक्रिएटिक जूसेस आ जाएंगे। तो पैंक्रियाज ने अपने स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपने से ही हार्मोन सिक्रीट किया, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट किया कि हमको दो, खाना पहुंच गया है, हमको दो आप अपना जूस, प्लस हमको दो आप अपना बाइकार्बोनेट। डक्टल सेल्स को स्टिमुलेट किया। कौन किया? डक्टल सेल्स को स्टिमुलेट सिक्रीटिन। सिक्रीटिन निकाला स्मॉल इंटेस्टाइन, डक्टल सेल्स को स्टिमुलेट किया, पैंक्रियाज के डक्टल सेल्स को। डक्टल सेल्स कहाँ पर है? पैंक्रियाज के डक्ट में। और डक्टल सेल्स विल रिलीज बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट से एसिडिक एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा, ओके। सिक्रीटिन एसिनर सेल्स को भी थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है, ज़्यादा नहीं, ठीक। अब वही काइम जो कि रिच है प्रोटीन में, पार्सली डाइजेस्टेड प्रोटीन और फैट में रिच है वो फूड, वो कोलसिस्टोकाइनिन को भी का भी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा बाय आई सेल्स। ये एस सेल्स और आई सेल्स, ठीक है, एस आई सेल्स, सब इंस्पेक्टर सेल्स याद रखो। एस सेल से सिक्रीटिन, आई सेल से कोलसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कोलसिस्टोकाइनिन ये वर्क करेंगे आपके एसिनर सेल्स पर, बेसिकली फोकस करेगा। तो सारा पैंक्रिएटिक जूस, ये सब जो अभी आपको बताए, पैंक्रिएटिक जूस में ये सब सारे एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ओके, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एलास्टेजेज, पैंक्रिएटिक लाइपेज, स्टिरोल स्टिरेजेज, फोस्फोलाइपेज, न्यूक्लिएजेज, ओके, इस तरह से पैंक्रिएटिक अमाइलेज, ये सारे न्यूक्लिएजेज, ये सारे एंजाइम्स जो हैं पैंक्रिएटिक जूस में मौजूद है। उस पैंक्रिएटिक जूस को स्टिमुलेट करने के लिए कोलसिस्टोकाइनिन जो है सिक्रीट होगा बाय द आई सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट विल वर्क ऑन एसिनर सेल्स, क्योंकि यही एसिनर सेल्स ये सारे एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म बना रहे हैं, ओके। देन व्हाट विल हैपन? अब आगे आपका पैंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंच गया, पैंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे जूस पहुंच गए, एंजाइम्स पहुंच गए। बीच में कौन था मीडिएटर? ये हार्मोन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन खुद निकाला और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट किया कि खाना पहुंच गया है या पहुंचने वाला है, क्योंकि एक ही साथ कोई धम से नहीं गिर जाएगा, थोड़ा थोड़ा पहुंचा, एंट्री हुआ, थोड़ा सा पहुंचा, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहा, थोड़ा पहुंचा, फिर थोड़ा और पहुंचा, फिर, क्योंकि आगे जर्नी ऐसे खाना जा रहा है काइम का। थोड़ा सा पहुंचा, स्टिमुलेट कर दिया, अब वो सिक्रीट करने लगा और खाना पहुंचा और उसका वेलकम हुआ, ओके स्टूडेंट्स, होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गए आपके 4 हार्मोन, बेसिकली 4 हार्मोन। एक हार्मोन और रह रहा है इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट एक नहीं 2 रह रहे हैं, एक है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी, उसका भी रोल है इम्पोर्टेंट। पहले हम लोग देखते हैं, चूँकि ये सब हैं स्टिमुलेटरी इफेक्ट वाले एंजाइम्स, इसलिए हम उनको अलग रखे हैं, क्योंकि स्टिमुलेटरी इफेक्टिव देखिए जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं सिक्रीशन के लिए, तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स वाले इनको अलग कर देता हूँ, कंफ्यूज ना करो। देखिए स्टिमुलेटरी
लेटरी इफेक्ट्स वाले एंजाइम। नंबर 1 आप पढ़े थे, बताए गैस्ट्रीन, नंबर 2 सिक्रिटीन, नंबर 3 कोलसिस्टोकाइनिन, और कोई था, सिक्रिटीन हो गया, गैस्ट्रीन, सिक्रिटीन, कोलसिस्टोकाइनिन, ये थे 3 हार्मोन। गैस्ट्रीन निकल रहा था जी सेल से, सिक्रिटीन निकल रहा है आपका एस सेल से, सीकेके निकल रहा है आई सेल से। एस सेल आई सेल ये इस ड्यूडेनम में है, गैस्ट्रीन का जी सेल पाइलोरस रीजन ऑफ द स्टमक। ओके, ठीक है। एक हार्मोन नहीं कर सकते, एक होता है मोटिलिन, बट आई डोंट थिंक दैट इज, अच्छा इसको लिख लो, हार्मोन्स नहीं है क्योंकि इसका लोकली एक्ट करता है, ब्लड में नहीं मिक्स हो रहा है। ये तीनों तो हार्मोन हो गए, हार्मोन मोटिलिन। ओके, ये गैस एक पेप्टाइड है छोटा सा, दिस इज स्मॉल पेप्टाइड, 22 अमाइनो एसिड्स हैं, और मोटिलिन की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। यानी खाना आगे बढ़ेगा, अटकेगा नहीं, आगे चलता रहे, सो उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये 4 तरह के सब्सटेंस जो हैं जिनका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, डाइजेशन में इनका रोल है। अब देखिए इनहिबिटरी इफेक्ट वाले, नंबर 1 एक है आपका सोमैटोस्टैटिन, नंबर 2 आप देख रहे थे सिक्रिटीन जो है वो गैस्ट्रीन को इनहिबिट कर रहा था, तो सिक्रिटीन भी हो गया इनहिबिट्स गैस्ट्रीन, ठीक है। और एक होता है आपका एक और होता है आपका, हाँ, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। अब 1 बाय 1 इसका रोल देखेंगे। क्यों इनहिबिटरी इफेक्ट आवश्यक है? जैसा सिक्रिटीन के केस में देखे हम, अब खाना पहुंच गया है ड्यूडेनम में, तो स्टमक में क्यों बेकार में एसिड रिलीज होगा, और अगर एसिड रिलीज होगा स्टमक में बेकार में, तो अल्सर के चांसेस हैं, क्योंकि खाना में मिक्स नहीं हो रहा है, वो अकेला पड़ा हुआ है एसिड। ओके, फिर आपको गैस बनेगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। ओके, 1 सेकेंड। ओके, अब देखिए कि सोमैटोस्टैटिन का क्या रोल है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूकोसल सेल्स, it is produced by the, one second, mucosal cells,
है। कौन? सोमैटोस्टैटिन ऑफ द ड्यूडेनम। जरी अस्थिर से करो ना, बड़ी हल्ला करो, तो धीरे धीरे करो। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूकोसल सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। और ये डेल्टा सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम और डेल्टा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज के द्वारा भी प्रोड्यूस होते हैं। और सोमैटोस्टैटिन का मेजर इनहिबिटरी इफेक्ट है इन द पैंक्रिएटिक प्रोडक्शन, डेल्टा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, एंड इट हैज मेजर पैंक्रिएटिक इफेक्ट्स। पैंक्रिएटिक इफेक्ट्स, मेजर इनहिबिटरी इफेक्ट। Inhibitory effects on pancreas itself. Pancreas itself, आप कह सकते हो पैंक्रिएटिक प्रोडक्शन। ओके, म्यूकोसल सेल्स, दीज सेल्स आर प्रेजेंट, आगे में प्रेजेंट है ड्यूडेनम में। और ये जब पैंक्रियाज से ऐड हो गया, बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर दिया, एंजाइम सफिशिएंटली मिक्स हो गए, देन द सोमैटोस्टैटिन विल inhibit, it will inhibit the इसको somatostatin will inhibit cholecystokinin and this secretin also. ठीक है, पैंक्रियाज के sorry, not this one, it is not secretin को नहीं, yeah, it is yes, somatostatin is antagonistic in function than of cholecystokinin और आपका secretin। और सिक्रेटिन गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर रहा है, गैस्ट्रिन ओके डिस्टर्ब कर देती है, छपड़ छपड़ कर करके, अस्थिर से काम नहीं किया जाता, मना कर देंगे, बड़ी बड़ी क्लास में डिस्टर्ब कर देती है। समझती नहीं कि पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा अस्थिर से काम करें। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूकोसल। नाउ कमिंग टू दिस, आई विल एंड दिस लेक्चर नाउ, बाद में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। ओके, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड ये प्रोड्यूस होता है म्यूकोसल ड्यूडेनल सेल से आगे चल के, और
इन रेस्पॉन्स टू द काइम, सब काइम के काइम पहुंच रहा है उस रीजन्स पर, और जिस रीजन से जो सब्सटेंस सिक्रीट होने वाले हैं वो वहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। काइम एक के बाद एक के बाद एक आगे का माइलस्टोन में पहुंचते जा रहा है। ठीक है, तो आपका और इसका मेन काम है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को रोकना। टू मेन काम है इज टू डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। खाना को रोकेगा ये। जो काइम है फैट रिच, फैट के डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा देर तक खाने को रुकने की आवश्यकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ज़्यादा देर तक भोजन रुकेगा तो अच्छे से डाइजेशन होगा, भोजन तुरंत पास न कर जाए, क्योंकि वहाँ पर इमल्सिफिकेशन होना है। ओके, इमल्सिफिकेशन के बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्शन करेगा उस पर। ओके, उसको मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स में तब्दील करेगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसीजर। उसके लिए गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है खाना को रोकता है, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और मोटिलिन ये दोनों जो है इनहिबिटरी है, दोनों जो है अपोजिट इन फंक्शन है। देखिए, मोटिलिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका रेगुलेशन पार्ट इज ओवर। आप देख लिए किस तरह से ये एंजाइम्स अलग अलग तरह से वर्क कर रहे हैं। आपको फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूँ बिफोर एंडिंग दिस क्लास। आप समझ लीजिए कि एंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलैप किया हुआ है हमारा, और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जैसे हार्मोनल कंट्रोल है वो स्टोमक एसिड एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर रहे हैं। तो हार्मोन गैस्ट्रिन देखते जाइए शुरू से, ठीक है। हार्मोन गैस्ट्रिन इज सिक्रेटेड बाय G cells in the stomach in response to the presence of the protein. Okay, गैस्ट्रिन भी सिक्रीट हुआ इन रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। देखिए लिखा हुआ है सिक्रेटिन इसको इनहिबिट करेगा, यहाँ नहीं लिखे हैं, इन रेस्पॉन्स टू
प्रोटीन एसिटाइल कोलिन, ये और डाइजेशन डाइजेशन सॉरी यार, ये एसिटाइल कोलिन और डायलेशन ऑफ स्टमक, ये इसके स्टिमुलेट करेंगे गैस्ट्रिन को, ठीक। और जी सेल से सिक्रीट होगा गैस्ट्रिन, और फिर उसके बाद गैस्ट्रिन विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ स्टमक एसिड्स, parietal cell it will release HCl and it will aid in the digestion of proteins. लेकिन जब स्टमक खाली हो जाता है, when the stomach is emptied, acidic environment need not to be maintained and a hormone called somatostatin, this somatostatin hormone inhibitory effect है, this will act on secretin, and then it will inhibit secretin, and it also inhibits gastrin. Secretin also inhibits gastrin, and somatostatin also inhibits gastrin. सॉरी, गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर दिया तो HCl भी बनना बंद हो जाएंगे. एंड ऑल दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ड्यूडेनम में आपका digestive secretions from the liver, pancreas and gallbladder play important role in digesting chyme during intestinal phase of the digestion. So in order to neutralize the acidic chyme, a hormone called secretin comes in the action. This secretin stimulates pancreas. This will stimulate pancreas, okay, to produce alkaline bicarbonate solution, and it will be delivered in the duodenum. Secretin also stimulates acinar cells of the pancreas. It also stimulates ductal cells of the pancreas. ठीक. Secretin works in tandem with another hormone called cholecystokinin. Tandem means secretin अपना काम कर लिया, उसके बाद एक और हार्मोन आएगा, उसके बाद वो अपना काम करेगा. That hormone cholecystokinin secretin के वर्क को और ऐड ऑन किया. तो cholecystokinin ना ही सिर्फ पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, बल्कि यह गॉल ब्लैडर को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है टू रिलीज द बाइल इनटू द ड्यूडेनम. ओके, हो गया cholecystokinin. इनहिबिटरी इफेक्ट देख लिए. सोमैटोस्टैटिन ये क्या कर रहा है? सोमैटोस्टैटिन cholecystokinin को भी इनहिबिट कर रहा है, सिक्रेटिन को भी इनहिबिट कर रहा है, गैस्ट्रिन को भी इनहिबिट कर रहा है. तीनों एंजाइम को, तीनों हार्मोन को ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन अकेला इनहिबिट कर रहा है. सिक्रेटिन हार्मोन ये भी इनहिबिट कर रहा है गैस्ट्रिन को. ठीक है.
फिर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. Okay, this is another level of hormonal control that occurs in response to the composition of food. Okay, समझ रहे बात को. कंपोजिशन ऑफ फूड पर डिपेंड कर रहा है ये जीआईपी, क्योंकि किसी का खाना अगर बहुत ज़्यादा फैट है उसमें वो खा रहा है, और कोई फैट लेस डाइट खा रहा है, कोई फैट रिच डाइट खा रहा है, तो दोनों, या एक ही पर्सन सपोज करो सुबह फैट लेस डाइट खाया, रात को फैट वाला डाइट खाया, रात को चिकन मटन खा लिया खूब और सुबह को सलाद खाया, मान लो किसी का ऐसा हैबिट है, तो क्या सलाद वाला जो काइम है और आपका मटन चिकन वाला काइम है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपके इंटेस्टाइन में नहीं रहेगा, दोनों का अलग अलग टाइम होगा, क्योंकि ये इसको ज़्यादा देर चाहिए फैट रिच डाइट को इंटेस्टाइन में रहना. ओके, सो फूड हाई इन लिपिड्स टेक ए लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट. So a hormone called gastric inhibitory peptide. This is hormone. It is secreted by small intestine to slow down the peristaltic movement of the intestine and to allow fatty foods more time to be digested, and it will be absorbed. It decrease it. Gastric inhibitory peptide GIP is to decrease it decreases gastric empty. ठीक है, it delays gastric empty. खाना का ठहराव होगा पेट में. ओके, तो दिस इज योर रेगुलेशन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ठीक है, होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, इन सब को याद रख लेंगे. कितने तरह के सब्सटेंसेज हम लोग पढ़े, इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, आप देख रहे हैं. सबसे पहले स्टार्ट कीजिए न्यूरोनल रिस्पॉन्स से. क्या आया सब्सटेंस? एसिटाइल कोलिन. ठीक, नंबर 1. नंबर 2 आपका गैस्ट्रीन हार्मोन. ये हार्मोन का जिक्र जो रेगुलेशन में काम कर रहे हैं, HCl एंजाइम का बात नहीं कर रहे हैं. ओके, नंबर 2. नंबर 3 सिक्रिटीन. तो ये सब याद कर लोगे आप. सिक्रिटीन हो गया, उसके बाद कोलसिस्टोकाइनिन नंबर 4, और नंबर 5 मोटिलीन. ठीक है, फिर नंबर 6 सोमैटोस्टैटिन, सिक्रिटीन पढ़े ही, और नंबर 7 GIP. 7 जो सब्सटेंस है, दीज आर द रेगुलेटर्स ऑफ secretion of regulators and or secretion or inhibition of digestive enzymes. These are the regulators of secretion either or inhibitors, secretion or inhibition of digestive enzymes. कौन से? नंबर 1 एसिटाइल
कोलिन, ये तो था न्यूरोट्रांसमीटर। ये हार्मोन नहीं है। नंबर 2 गैस्ट्रिन, ये सब हार्मोन है। नंबर 3 गैस्ट्रिन के बाद क्या था आपका सिक्रिटीन। ओके, सिक्रिटीन। नंबर 4 CKK, कोल सिस्टोकाइनिन। नंबर 5 सोमैटोस्टैटिन। नंबर 6 आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटर, इनहिबिटरी पेप्टाइड। नंबर 7 मोटिलिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं क्लास को। In the next class we will see. So here your digestive enzyme is complete now. This portion of your syllabus is over. In the next class we will see physiology of respiration. Thank you.